शार्क टैंक में जाना कैसे हुआ? आपने सब जगह आंसर दिया है, बट आई थिंक फॉर माय ऑडियंस आल्सो यू आंसर इट कि शार्क टैंक में कैसे फॉर्म फिलअप किया आपने, अंदर कैसे घुसे? See, if you look at any of the global formats of Shark Tank, it's mainly meant for D2C or B2C companies. If you look at the format, average pitch time is about 45 minutes. 45 से 60 मिनट में आपको उसको समझना to form a investment decision is not that easy. Right. It is very important कि अगर 12 साल का बच्चा भी अगर इंडिया में बैठ के टीवी देख रहा है तो रिमोट पे बटन ना दबाए वो। उसको क्या समझ में आएगा टेक में? उसको क्या समझेगा B2B टेक्सटाइल जान बाजार क्या है? फॉर एग्जाम्पल यू सेड योर स्टोरी राइट, you've done like 10-12 startups. You never gave up. Right. You had an idea, you pursued it, you said कि चल ठीक है यार ट्राई का मारते हैं, और लास्ट में कुछ ना कुछ तो चले गई. And true story, 2 days before I was scheduled to pitch in front of the sharks, I decided not to go. आज जिस व्यक्ति से हम बात करने जा रहे हैं उसने एक धागे से पूरी की पूरी कंपनी सेल डाली। ये अपनी कंपनी यान बाजार के थ्रू एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने का विजन रखते हैं। आइए बात करते हैं ड्रीम्स, बिजनेस और स्केलिंग की मिस्टर प्रतीक गढ़िया, द फाउंडर ऑफ यान बाजार से। और प्रतीक सर, Hi, I'm good. Thank you for calling me here. मेरे को एक बात बताओ, सब क्वेश्चन पूछते हैं आपसे ये वाला, मैं भी क्वेश्चन स्टार्ट वहीं से करता हूँ कि शार्क टैंक में जाना कैसे हुआ? आपने सब जगह आंसर दिया है, बट आई थिंक फॉर माय ऑडियंस आल्सो यू आंसर इट कि शार्क टैंक में कैसे फॉर्म फिलअप किया आपने, अंदर कैसे घुसे, क्या स्टोरी थी उसके बिहाइंड में? हाँ, again it's become a very tiring question for me because as you said Shark Tank को almost 1.5 साल हो गया है. नहीं, फिर भी लोग अभी आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, सो एवरी टाइम जब यू स्पीक आउट द सेम थिंग पीपल रिकॉग्नाइज, अच्छा ये यहाँ से हुआ था। See, of course, I've grown up watching Shark Tank across all formats, right? Whether it's your US format, which is one of the most popular, your Australian format, yeah, British format, which is Dragon's Den. At least in our wildest dreams, I think most of us, not just me, I mean, I'm sure you would have also not imagined Shark Tank would come to India. Finally, I think around 2020 somewhere it was announced that Shark Tank is coming to India. Some of my friends who've been like, you know, great support pillars or great advocates of the Yan Bazaar started pushing me. And in my head somewhere I was clear कि नहीं, Shark Tank is not for this kind of a concept. ऐसा क्यों सोचा कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है? ऐसा क्या थॉट प्रोसेस आया था आपको? See, if you look at any of the global formats of Shark Tank, it's mainly meant for D2C और B2C companies. B2B और वो भी tech driven companies बहुत कम आती है. Again, उसके भी काफ़ी reasons है, but one of it is कि if you look at the format, average pitch time is about 45 minutes. To understand a consumer business fairly easier, but a B2B complex supply chain driven business, it's very very complex. 45 से 60 मिनट में आपको उसको समझना to form a investment decision is not that easy. Right. Right, plus audience connect नहीं कर पाती. Ultimately at some level it is also a reality show. Right. So audience को connect करना बहुत ज़रूरी है. मतलब for Shark Tank to succeed in terms of TRP, it is very important कि अगर 12 साल का बच्चा भी अगर इंडिया में बैठ के टीवी देख रहा है तो रिमोट पे बटन ना दबाए वो, चैनल ना बदले. उसको क्या समझ में आएगा टेक में? उसको क्या समझेगा B2B टेक्सटाइल जान बाजार क्या है? बट आप एक स्निच दिखा दो या आप एक अगर वो स्किपी दिखा दो, उसको समझ रहा है वो चीज़, राइट? एंड इंडियन ऑडियंस इज वेरी वाइड. मतलब इट्स नॉट जस्ट पॉपुलेशन, आर इमोशनल ग्राफ इज वेरी डिफरेंट. Right. So there are people who watch shows like Big Boss, there are people who watch shows like, you know, क्योंकि सास भी कभी होती है और रोडीज. Right. That shows the emotional graph of Indians, right? To say it's a one country, but I mean it's like multiple countries with different cultural backgrounds tied together. So for multiple such reasons, I felt Yan Bazaar was not a company that should go on such platform. One of my friend was very persistent, and all thanks to him, like all thanks to this one guy who kept pushing me to a stage where it became nagging, and it came to a stage where I had no other option left but to tell him कि यार भाई apply कर दिया है. Big. So that happened, and I remember वो भी कैसे हुआ था? I reached office early in the morning, 9 AM. No one was around. I thought कि चल एकदम फ्री बैठा हूँ, मतलब 1 घंटे तक I have nothing to do. Just ऐसे जल्दी पहुँच गया. तो I thought चल ठीक है, अभी मतलब कल रात को इसने इतना पकाया है तो let me just do it. That happened, and then you know there were multiple application stages. By God's grace, we kept graduating to every different stage. Finally, the last round was again a pitch round, but you're not pitching to Sharks, you're pitching to their panel. So Sony/Shark India team had a panel where they would interview you. Okay. Now, when they are doing this, obviously they're looking for, you know, good business, but also good story, which would appeal to Indian audience. Right? We felt our story will not appeal to people, and we felt ऐसा क्या देखा होगा ही नहीं. Honestly, I have no idea, but I feel that our business numbers are very strong that time. Okay. So my assessment is that maybe it's our numbers that kind of, you know, selected us to the final round. And true story, 2 days before I was scheduled to pitch in front of the Sharks, I decided not to go.
So I called a friend of mine who represents 3 funds in India. I spoke to him कि यार ऐसा ऐसा है, सिलेक्शन हो गया है, परसों पिच मारने जाना है और मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए. And by that time I had spoken to a few people who had already pitched on Shark Tank. Okay. And their experience was, So bad. I mean, the kind of response they were getting from a few sharks were not that great. Okay. And I didn't want कि यार बाजार की उतनी बेइज्जती पब्लिक टेलीविजन पे की जाए. हमारा तो बिजनेस मॉडल भी ऐसा है कि किसी को समझाना 5 मिनट के पिच में बहुत डिफिकल्ट है. नहीं समझ में आएगा. मतलब एक एलिवेटर पिच में करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल. इट्स अ होलिस्टिक प्लेटफॉर्म, राइट? इट्स नॉट जस्ट इंडिया मार्ट विच इज जस्ट डिस्कवरी, इट्स ट्रांजैक्शंस, it's advisory, it's like so many, it's multi-layered. So I spoke to him and he was like, अरे तू पागल है क्या? मतलब, you know, what's wrong with you? What do you have to lose and what do you have to gain? Just if you look at that, just go for it. So then is the other friend who actually convinced me to go for it. तो इसका मतलब एक्शन लेना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में. मेरा एक फंडा है कि एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विदाउट एक्शन यू विल गेट नथिंग. आप क्या सोचते हो इस बारे में? So see, I've been listening to podcasts since many years, as long as I can remember. Like even when me and my wife, we go for road trips or we drive or we travel now, both of us are not listening to music, we are listening to podcasts together. Oh, great. So one of my favorite podcasts is Tim Ferriss, which is a long format podcast, and one of my favorite episodes of Tim Ferriss is Derek Sivers podcast. Okay. Like Derek Sivers ने एक बात बोली थी कि at an early stage in your career, never say no. Right. Right, so take all the decision that comes to you because you do not know which one will lead to which one. Like for example, you said your story, right? You've done like 10-12 startups. You never gave up. Right. You had an idea, you pursued it, you said कि चल ठीक है यार, try का मारते और लास्ट में कुछ ना कुछ तो चले गई. So even at Yan Bazaar, we come up with ideas like so frequently, and I just give everyone a shot. फैमिली से आते हो, राइट? टिपिकल मारवाड़ी फैमिली से आते हो. तो ये इसका बिजनेस का आइडिया कैसा है आपको वहाँ पे? See, my family business into fabric manufacturing. पूरा फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग. हाँ, तो हम धागा लेके कपड़ा बनाते थे. When I joined the business, today the business model is slightly different, but when I joined, हम लोग धागा खरीदते थे और कपड़ा बनाते थे. कौन करते थे? पापा आपके? Just my dad. That's- हाँ, my dad is like self-made. It's his own business, something that he hustled in. I mean, he has had his own journey. ठीक है. 15 साल की उम्र में वो छोटे से राजस्थान के गांव से भाग के नेपाल चले गए थे. He joined a sari shop as a salesman. So he's had his own journey. Created a business, you know, finally got into manufacturing. And when I joined him, हम लोग धागा खरीद के कपड़ा बनाते थे. I spent about close to 6 to 7 years in that business, where my main responsibility is to source यानी manufacture fabric. और वो कब ज्वाइन किया था आपने, कौन सी एज में? पहले तो 1 साल फॉर्मली ज्वाइन किया 2011 में आफ्टर कंप्लीटिंग माय बैचलर्स, बट आई प्रैक्टिकली ग्रोन इन द बिजनेस. माय डैड कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड में जब वो छोटे थे तो अपने दुकान में जाके बैठते थे. किराने की दुकान हुई करती थी हमारी. एंड मतलब जनरेशन ओल्ड, मतलब 4-5 जनरेशन ओल्ड. झुंझुनू में गाँव में एक दुकान थी. तो उनको लगा जब मैं बचपन से गाँव में दुकान में बैठा तो मेरा बेटा भी बैठना चाहिए. मतलब स्कूल की छुट्टी हो या कॉलेज की छुट्टी हो, ऑफिस आके बैठना चाहिए. Literally, I think since I was 10 years old or 15 years old, I've been part of going to office, sitting next to him. College vacations have been in offices. So I've known the business like from an outside perspective, sitting next to him. हाँ. But formal, I joined it like in 2011 after completing my bachelor's. 1 साल business किया, फिर I went to Warwick for my masters. Came back and spent another 6 years in the business. बट ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था कि आपके साथ, कि बिकॉज आपके फादर तो कर ही रहे हैं, आप भी बैठे हो वहाँ पे, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो कि नहीं यार वो पर्टिकुलर इंसिडेंट ने मेरे को पिंच किया हो, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू परस्यू माय कैरियर? इंसिडेंट्स तो बहुत थे, कोई बट पर्टिकुलर इंसिडेंट? एक मेन इंसिडेंट ये था कि अराउंड दैट टाइम आई हैड रेड एन आर्टिकल रिटन बाय पॉल ग्राहम, YC, you know, Y Combinator, and that was my first startup bug. ओके. That was when I realized कि नहीं बॉस, मतलब that was the time when I realized कि वो, you know, इस तरह का भी एक business setup होता है और you know how different that is from traditional business setups. So that was my inclination towards startup, and that is the reason why I chose to go to Warwick, because my course, we didn't have any exams. It was called entrepreneurship, like innovation entrepreneurship. 1 full year we've been doing research, studies and practical execution on one business model that you have in mind. ओके. That got me excited. I spoke to my dad, convinced him, which was very difficult because my dad is a great salesman. So उनको बेचना बहुत difficult है. उनको बेचा कि नहीं ये कोर्स करना है और मुझे फैमिली बिजनेस नहीं करना है. So that time I decided कि बस फैमिली बिजनेस नहीं करना है, खुद का ही स्टार्टअप करना है. I was working on one idea during this course. Came back to start that, but there were certain financial like situations in the family which kind of, I mean, I had no other option but to join the family business. बट इंडिया में तो यही होता है ना कि सबसे ज़्यादा घर वालों को ही कन्विंस करना पड़ता है. इट टच माय हार्ट, क्योंकि मैं भी मेरे पापा को आज तक कन्विंस नहीं कर पाया कि मैं बिजनेस करता हूँ, और उनको आज तक पता नहीं है कि हम लोग ये बिजनेस होता ही है. बिजनेस होता है क्या. 70 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं. यू वोंट बिलीव, मेरे एक ताऊजी है जो कि फैमिली में सबसे बड़े हैं, एंड ही इज़ ए सर्जन.
उनका मुझे मैसेज आया, हमने कभी मतलब मेरे पापा और ताऊ जी आपस में कभी बात नहीं करते हैं, पता नहीं कोई सम रीज़न है क्यों नहीं करते, मेरे को समझ में नहीं आता। ना तो उनको पैसे से लेना देना, ना किसी चीज़ से लेना देना है। अच्छा। बट स्टिल पापा और ये 8 भाई है, बट स्टिल दे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं। बट वो उनका सबको मानते हैं क्योंकि बिकॉज ही इज़ ए गुड सर्जन और बहुत बड़ा काम किया उन्होंने और बहुत नाम है उनका। ओके। मेरी एक स्टोरी छपी, उनके बेटे ने उनको भेजा कि यार ये इनका लड़का है क्या? हाँ। तो बोलते हैं हाँ इनका लड़का है। तो बोला कि यार ही इज़ डन ए ट्रिमेंडस जॉब, आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट बोलो। उनका पहले मेरे पास फ़ोन आया, फिर मेरे पापा के पास फ़ोन आया, देन ही रियलाइज कि यार हाँ कुछ कर रहा है। फिर पूछते कितने बिजनेस है अपने, मैंने बोला 5 बिजनेसेस अपन कर रहे हैं अभी। तब जाके उनको लगा कि I'm still waiting for that day. मतलब इट्स नॉट ईजी जॉब सर। मैंने मेरा घर छोड़ दिया इस चीज़ के लिए, मैं किराए पे रहा, किराए पे रहने के बाद मैं फिर बेंगलोर आया मेरे बीवी बच्चों को लेके, देन आई स्टार्टेड अगेन एंड अगेन। पैसे का सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस होता ही क्या, बिजनेस इससे बेकार चीज़, चुपचाप जॉब करो। और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो इतने पीछे थे कि गवर्नमेंट जॉब में ही लग जाओ आप, बट गवर्नमेंट जॉब करो। तो पर मैं इतना रिलेक्टेंट था कि नहीं यार मेरे को करना तो यही करना लाइफ में, अदरवाइज आई विल नॉट सर्वाइव, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मर ही जाऊंगा। मैंने करना चालू किया, देन कम से है। तो आप क्या सोचते हैं, मतलब पेरेंट्स को इतना I think that's a great story that would kind of convince your audience also कि people who are still sitting on the sides waiting, you know, for that approval, but have a very great idea. Look at the first batch of startups in India ना, most of these guys, whether it's Oyo or Ola, they all come from a small town. राइट। I am sure even they didn't have any approval. नहीं होता, Forget approval of family, उनको market validation भी शुरू में नहीं मिला रहेगा। वो पता ही नहीं होता है कुछ कि कैसे कर सकते हैं। बट कुछ बिजनेस मॉडल, बहुत सारे बिजनेस मॉडल ऐसे भी तो होते हैं कि आप पे इम्पोज कर दिए जाते हैं। जैसे मान लो अमेजोन की जरूरत नहीं थी, इम्पोज कर दिया, वो बिजनेस बन गया। ब्लिंकिट की जरूरत नहीं है, आज भी नहीं है, बट वो इम्पोज कर दिया गया, फिर वो बिजनेस बन चुका है। तो ये जो बड़ी कंपनीज है जो बड़ा पैसा एक साथ फेंक देते हैं मार्केट में, दे आर इम्पोजिंग द बिजनेस, देयर आइडियाज, जो भी उनके माइंड में चल रहा है वो इम्पोज कर देते हैं। बट हम एज ए स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो मार्केट में इतना पैसा फेंक नहीं पाते, वो लोग क्या करते हैं, पहले मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, फिर कस्टमर के हिसाब से हम बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं। तब तक कोई एक जाइंट आता है और उस बिजनेस को पूरा एक्वायर कर लेगा या फिर पूरा खा लेगा। आपके हिसाब से क्या सही अप्रोच है? See, if you were to ask me this question 3 months back, ओके, तभी मैं शायद आपके साथ पूरा मतलब अग्री करता। मेरा ओपिनियन काफ़ी अलग हो चुका है अभी। आई थिंक ये सारे जो फाउंडर्स है, चाहे लेट्स से कि आपने जेप्टो की बात की, वो फॉर्मेट की बात की, ये नीड नहीं है। बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जो बहुत डेटा ड्रिवन है, तो उन लोग पूरा मार्केट स्टडी करते हैं। लेट्स से कि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने 15-15, 20-20 आइडियाज़ लेकर हर आइडिया को स्लाइस एंड डाइस कर करके मार्केट साइज और मतलब हर एंगल से, जो मैकेंसी अप्रोच है, कंसल्टेंसी अप्रोच होता है ना, फुल डेटा ड्रिवन वे में स्टडी करके फाइनली दे नैरो डाउन टू वन आइडिया कि मेरे को ये आइडिया परस्यू करना है, राइट। तो ये सब बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस से और बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन होने के बाद ये रहे हैं। बट अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो जेप्टो का आइडिया है, अब जब तक मैं बॉम्बे में था और मेरे फैमिली के साथ रहता था ना, मुझे कभी जेप्टो या स्विगी या कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट जैसे ही मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ, आई कैन टेल यू, सडनली आपको रियलाइज होगा अगर दूध नहीं है, घर पे कोई आया हुआ है, चाय बनानी है, आपको 10 मिनट में ही डिलीवरी चाहिए, ना ही कोई हाउस हेल्प है, और आपके लिए बाहर जाना, मतलब मैं जिधर रह रहा हूँ ना, मेरे विंग से मेरे मेन गेट तक पहुंचना ही 500 मीटर का रास्ता है, समझ लो। तो मैंने इधर आने के बाद पिछले 4 महीने में, आज फरवरी से अभी तक 4 महीना हो गया है, मैंने मेरे ख्याल से अगर ग्रॉसरी शॉपिंग हो या कुछ भी हो, हर चीज़ मेरा स्विगी जोमेटो या ये जो आपका डार्क स्टोर फॉर्मेट है, चाहे वो जेप्टो हो, ब्लिंकिट हो या स्विगी इंस्टामार्ट हो, तो 100% यूज़ मेरा इधर ही हुआ है। तब जाके मेरा ओपिनियन चेंज हुआ कि नहीं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये जो इम्पल्स बाइंग नहीं बोलूँगा मैं इसको, नीड बेस्ड बाइंग की, मेरे को अभी कभी ये चाहिए और ज़रूरत है, वो मेरा उस पर हुआ है। और कन्वीनियंस फैक्टर मैं वैल्यू करना चालू कर दिया अभी ये सब चीज़ों पे। यू वोंट बिलीव प्रतीक, अभी कल परसों में एक पॉडकास्ट कर रहा था, कुछ बात होते होते आई रियली क्राइड, मैं रोने लग गया। अब इन अ गुड वे और इन अ गुड वे, something really touched you. something really very touched, क्योंकि वो दे आर स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट। और लोगों को जब आपने यान बजा के शायद शार्प टैंक में भी दिया होगा, तो आप शायद अपनी बिजनेस को, बात को दिल से बोले होगे, तब जाके लोगों ने बहुत ज़्यादा टच किया होगा। बट राइट नाउ व्हाट आई एम फीलिंग इट टू मेक दिस पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग और समथिंग लाइक, बट यू आर वेरी डेटा ड्रिवन अप्रोच राइट नाउ एज पर मी, कि आप बहुत डेटा वाली बात कर रहे हो, एकदम सटीक बात कर रहे हो कि नहीं लाइफ में, बिजनेस में ये 2-3 पॉइंट करेंगे तो ये चीज़ घटित हो जाएगी, ये 4 करेंगे तो ये सब हो जाएगा। आई वॉन्ट मोर फ्रॉम योर साइड प्रतीक, कि आप एक्चुअली हो कौन, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर पर्पज इन लाइफ, क्योंकि हम लोगों को बता सके कि जो एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट होता है ना, वो आता कहाँ से, क्यों करना चाह रहा है यार, ये क्या माइंडसेट है इसका, क्या बदलना चाहता है, ये खुद के लिए बदलना चाहता है, पापा के लिए बदलना चाहता है, या घर वालों के लिए, मतलब किसके लिए करना चाह रहा है। सोसाइटी में तुम ऐसा क्या इम्पैक्ट पहुँचा दोगे कि तुमने किया तो ही ये काम हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। तो आई वॉन्ट मोर फ्रॉम यू प्रतीक, कि
आपकी बचपन की जर्नी कैसे रही? आपको क्या थॉट प्रोसेस था कि नहीं मेरे को बिजनेस इज माई वाई? You can more elaborate, Pratik, from you. Yeah. Sure. I think very interesting and very personal question. Yeah. सबसे पहले तो वाई की अगर बात करें इम्पैक्ट की, अगेन सी दयान बाजार की बात करें तो फॉर अस इम्पैक्ट हैज ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हमारा पर्पस ये है कि हम इंटरनली वी कॉल समथिंग क्रांति. यश इज ऑल्सो सिटिंग हियर, इफ यू वर टू आस्क हिम ना, या बयान बाजार में कोई भी टीम मेंबर को पूछो कि आपका पर्पस क्या है, व्हाई आर यू पार्ट ऑफ द टीम, एवरीवन विल से क्रांति. कि हमें we want to revolutionize the textile industry in such a way that we become a case study. Okay. कि really वो impact लाना है, वो economic impact लाना है. And I think अगले 2 या 3 महीने में we'll be sharing a lot of like press release which will kind of showcase कि we're just saying it but we're actually doing something about it. So we are doing a lot of activities जिससे business पे कुछ उतना impact नहीं है. मतलब business पे चाहे वो acquisition point of view से बोलो, P&L point of view से बोलो, कुछ impact नहीं है. We are just doing it because we feel कि इसका indirectly economic impact बहुत बड़ा है in terms of putting India on the global map. तो इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे आप में? मतलब आपको कैसे लगा कि वास्तव में बहुत बड़ा बिजनेस है? क्या आपने बहुत सारी इसमें रिसर्च डेटा डाउन? Let me come back to your earlier question which also answers this question. See, like I said, my dad's journey has been very different. Right? 15 साल की उम्र में गाँव से भाग के नेपाल जाना, मतलब एक दुकान में सेल्समैन मतलब वो जो आप साड़ी की दुकान एंटर करते हो तो मतलब काउंटर के पीछे जो लोग होते हैं, दैट्स वेयर ही स्टार्टेड हिज जर्नी. उधर से कलकत्ता शिफ्ट हुए. माय एल्डर सिस्टर वाज बोर्न इन कलकत्ता. कमीशन एजेंट का बिजनेस चालू किया. तो वाइल वी वर ग्रोइंग अप, मतलब वो तो 15 से 20 दिन तो ट्रैवल ही करते थे. राइट. उनको तो पता भी नहीं होगा उनके बच्चे कितने बड़े हो गए और कौन से स्टैंडर्ड में है. एंड आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट माय डैड, मोस्ट इंडियन फैमिलीज जिधर एक सेल्फ मेड बिजनेस फैमिली रहा है ना, वो सबका जर्नी यही रहा है कि दे ट्रैवल अ लॉट. मतलब माय डैड इज स्टिल द काइंड ऑफ हसलर एट दिस एज वेयर जिधर कोई चीज़ की एटलीस्ट कमी नहीं है. मतलब सेल्फ सफिशिएंसी तो आ गया है. आज भी वो भिवंडी में जो हमारा मतलब उनका ऑफिस भिवंडी में है, इट्स मोर लाइक अ पैकिंग हाउस. मतलब इस तरह के फैंसी ऑफिस नहीं है. उधर आपने कपड़ा देखा रहेगा, कपड़े का थान जो होते हैं, कपड़े के थान रखे हुए होते हैं. देयर इज नो बेड. स्टिल हफ्ते में 2 या 3 दिन आज भी ऑफिस में सोते हो. और सोना मतलब वो लम्प खोलेंगे, वो लम्प का गद्दा बन गया और उसी पे बस सो जाएंगे. तो दैट्स द काइंड ऑफ हसल ही इज बीन थ्रू. सो व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, माय मॉम वाज वेरी क्लियर कि नहीं यार, मतलब एक जो बेटा है सारे के सारे मतलब एक्सपेरिमेंट हो या जो भी हो, पुश मार मार के मतलब लाइफ में आ गए. इसने कुछ किया तब जाके हमारा कुछ बनेगा. तो माई जर्नी हैज बीन सच की वेयर लेट्स से कि आई हैव प्लेड ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट इन माई लाइफ. तो अंडर 12 फुटबॉल टीम सेंटर फॉरवर्ड, बास्केटबॉल टीम, टीटी टीम, क्रिकेट टीम कैप्टन, स्विमिंग टीम में भी थोड़ा टाइम था, एंड फाइनली एथलेटिक्स टीम में भी था. मतलब आप समझ लो कि 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड एवरी स्पोर्ट आई कुड पॉसिबली प्ले, आई कुड कीप स्विचिंग एंड प्ले एवरी स्पोर्ट बिकॉज उतना प्रेशर था कि नहीं मतलब हर चीज़ करना है. वेदर इट इज़ स्टडीज़, वेदर इट इज़ कॉलेज में समझ लो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप जो कल्चरल फेस्ट होते हैं. एक फेस्टिवल तो पूरा मेरा ही ब्रेन चाइल्ड था. मतलब आई हैव डन अ कल्चरल फेस्ट कॉल्ड आवाज़ विच वाज वो टाइम, मतलब आपको याद होगा वो कसा वाला जो इंसिडेंट हुआ था. सो एंटी टेररिज्म लेके वी क्रिएटेड अ म्यूजिक फेस्टिवल वेयर मतलब सम ऑफ द बेस्ट बैंड्स इन इंडिया प्लेड. आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ दिस बैंड कॉल्ड मेटालिका. थ्रैश मेटल में ग्लोबली दे द बिगेस्ट बैंड, 80s का बैंड है. मेटालिका जब दुबई में प्ले किया था तब नर्व सेल करके एक लोकल बैंड था जो उनके लिए ओपन किया था. नर्व सेल का गिटार प्लेयर भी बॉम्बे आया था हमारे शो के लिए. तो मतलब कॉलेज में कल्चरल फेस्ट भी किया है, कॉलेज में CL भी रहा हो, टॉप भी किया है. मतलब उतना प्रेशर रहा है ना हमेशा से. तो आई थिंक इट इज़ बीन माई मॉम एंड द प्रेशर दैट हैव बीन पुट ऑन मी to like participate in everything including studies, which has probably shaped my character today. मैं जिन भी फाउंडर्स मिला हूँ ना, कि जब तक उनकी लाइफ में उन्होंने या तो हसलिंग कल्चर नहीं देखा हो कि भैया मेरे पापा या फिर मेरा कोई ब्रदर या फिर कोई बंदा बहुत खतरनाक हासिल कर रहा है, और जब तक उसके दिमाग में इतना प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में, तब तक वो इस स्टेज पे नहीं पहुँचता है, वो सीट पे नहीं बैठता है. देखो ये चीज़ तो आपकी एकदम सही है. मैं मेरे आज की भी बात करूँ, लाइक सर मेरे पापा आज भी हफ्ते में 2 बार अगर भिवंडीज होते हैं तो मैं कितना भी असर करूँ उनके लिए कुछ नहीं है. उनको लगता है बॉस मैंने लाइफ में इतना असर करने वाला, आज भी मैं इतना असर करता हूँ तो उसके सामने क्या ही करता है, क्या ही कर रहा है. सही बात है. सो वो जो वैलिडेशन है जब तक वो नहीं मिले और जब तक उतना प्रेशर है तब तक तो आपको लगे ही रहना है. मतलब शार्क टैंक में जाने तक, आप जैसे शार्क टैंक फाउंडर्स की बात कर रहे हो, जिस दिन शार्क टैंक में गए थे मेरा एपिसोड नवंबर 2021 में हुआ था और 5 जनवरी 2022 को ब्रॉडकास्ट हुआ था.
तब तक हमने ऑलरेडी 200-250 करोड़ का धंधा मतलब एडवांस पेमेंट पे किया हुआ है ओके, विथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपकी जर्नी कैसी रही B2B, बिकॉज आपका पूरा बिजनेस B2B आई गेस सो, यस राइट? तो आपने कैसे हैंडल किया कस्टमर को? बिकॉज मेरे को लगता है कि आप तो जब जाते होगे तो शायद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कर देते होंगे, यार मैं क्यों लूँ, कैसे लूँ, एडवांस में लेना है। आपने ऐसा क्या बात बोली कि वो कन्विंस्ड हो गए कि नहीं यार इनसे करना है बिजनेस मेरे को? व्हाट वाज दैट लाइन, व्हाट वाज दैट विच? क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं बिजनेस में यार मैं उसके पास जाता हूँ, मना कर देता है। अपनी सेल्स टीम है, सेल्स टीम के पास कोई B2B लीड आती है इनबाउंड चल के, तो भी बोलते हैं कि सर ही वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग। उसके लिए एक आंसर चाहिए। अगर इफ ही इज कमिंग टू माई प्लेटफॉर्म एंड ही इज फिलिंग द फॉर्म, वो बोल रहा है कि यार मेरे को इस चीज़ से रिलेटेड कुछ बात करनी है, स्टिल यू आर नॉट एबल टू कन्विंस हिम, क्या रीज़न है? पहली बात तो आपने खुद ने जो शुरुआत में बोली वो बहुत सही बात बोली कि इंडिया में आज भी B2B जो सेगमेंट है वो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर पकड़ लो, और हाईली रिलेशनशिप ड्रिवन है। आप अपनी फैमिली को भी देखोगे ना, अगेन दैट्स नॉट अ B2B बिहेवियर, इट्स ह्यूमन बिहेवियर। आज आपको कोई डॉक्टर को जाना है, लेट्स से मैं अभी नया नया बैंगलोर शिफ्ट हुआ, मेरे को कोई डॉक्टर पता करना है, कुछ बीमारी हो गई, मैं क्या करूंगा, मैं मेरे ऐसे कोई दोस्त को पूछूंगा जिस पे मेरे को भरोसा है, और वो मुझे वो डॉक्टर का नाम बताएगा जिस पे उसको भरोसा है। तो एज ह्यूमन बीइंग्स वी वर्क ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। वही सेम पैटर्न जो आपके बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आप जब ऑफिस पहुंचते हो, अगेन जिधर आपको ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप है उधर आप बिजनेस करना प्रेफर करते हो, बिकॉज आपको एक कंफर्ट है ना कि यार वो रिलेशनशिप है, मतलब एक कंफर्ट है कि यार मेरा धंधा उधर कुछ आगे पीछे होगा नहीं, मैं जानता हूँ उसको उधार पे दे सकता हूँ, मेरे को मालूम है मेरा पैसा सेफ है, या उधर क्वालिटी सही आएगा, या मेरे को डिलीवरी टाइम पे मिलेगा। तो कंफर्ट फैक्टर पे आती है बात। अब B2B टिपिकली एक डायरेक्ट सेल मॉडल की बात होती है, जैसे आप अपनी वेबसाइट का भी अपनी जो पुरानी बात हो रही थी, डायरेक्ट सेल मॉडल मतलब क्या है कि आपको एक सेल्स टीम खड़ा करनी है, जैसे इंडिया मार्ट का मॉडल है कि आपको एक एक जन के पास जाना है, उसको मिलना है, अपना प्रोडक्ट या अपना बिजनेस या अपना सर्विस को पिच करना है और फिर कन्विंस करना है। और उसमें दो चीज़ है, एक तो कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जिसको अपने कैक बोलते हो, बहुत हाई होता है, बिकॉज सेल्स टीम पैन इंडिया अगर बिजनेस करना तो पैन इंडिया टीम बिठानी है। तो व्हेन यू लुक एट लार्ज मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लाइक द ITC और HULs, नॉर्थ जोन ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करेंगे, फिर उसको और नीचे डिवाइड करेंगे, वो एरिया वाइज डिवाइड कर करके क्लस्टर स्पेसिफिक वो लोग टीम बनाते हैं, राइट। तो एक तो कॉस्ट फैक्टर हाई है, दूसरा इफ यू आर डीलिंग विद लार्ज बिजनेसेस, जैसे हमारे इसमें हमारे फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स टिपिकली 50-500 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, तो उनको कन्विंस करना मतलब जो बोलते हैं ना कि योर टेन्योर इज वेरी हाई, फर्स्ट मीटिंग टू क्लोजर कैन टेक 3 to 6 months। इफ यू स्पीक टू मोस्ट सेल्स पीपल हु आर इन B2B ना, सबका ये बोलना रहेगा कि यार मतलब 3 से 6 महीना तो लगेगा, यही बोलते हैं। अब हमने जब धंधा चालू किया, हमारा अप्रोच ऑल्दो वी वर अ स्टार्टअप, खुद कैपिटल इन्फ्यूज किया, एंड बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू माय डैड डिडंट सपोर्ट मी, तो आई डिडंट इवन हैव द लग्जरी कि पापा से कुछ पैसा बोरो करके चालू करूँ। तो मैं खुद मार्केट में मैंने पैसा बोरो करके इंटरेस्ट पे, और फिर मैंने द यान बाजार चालू किया। मतलब माय फॉर मी द रिस्क फैक्टर वो सो है कि मैंने खुद ने अपने नाम पर, बिकॉज ऑफ कि प्रदीप गाड़े का बेटा है वो बोल के मैंने मार्केट में, बट मैंने पैसा बोरो किया है, एंड अगर कल कुछ नहीं हुआ तो आई हैव नथिंग, मतलब मेरे पास एसेट कुछ नहीं, खाली लाइबिलिटी है, राइट। रिस्क तो लेना पड़ेगा बहुत। और फंडिंग पहले लिया नहीं था, आइडिया क्लियर था कि पहले धंधा खड़ा करना है, फिर इन्वेस्टर के पास जाना है, दैट वाज माय अप्रोच। तो 200 करोड़ आपने किया, वो आपके बैंक में रियलाइजेशन हुआ क्या? 200 करोड़ आपके बैंक में? यस, मतलब एक्चुअल ट्रांजैक्शन डन ऑन एडवांस पेमेंट प्री शिपमेंट बाय द बायर। तो हमारा अप्रोच क्या था कि हमें सेल्स टीम बना नहीं सकते, हमने इनफैक्ट 3 महीने पहले तक हमारे पास सेल्स टीम नहीं रही है, तो हमने 3 साल निकाला है, वी हैव ग्रोन द बिजनेस ऑर्गेनिकली, इनबाउंड पाइपलाइन, विदाउट सेल्स टीम, विदाउट एनी ऑफ दैट। 3 साल मतलब सब राजस्थान में बोलते हैं ना, 3 दिवाली तो देखता है बिजनेस। हाँ, मतलब चौथी दिवाली तो आई थिंक शायद दिवाली हो गई है। तो अब क्या, बहुत अच्छी बात आपने बोली, 3 दिवाली वाली, 3 दिवाली एक्चुअली 3 दिवाली निकली है बिना सेल्स टीम के, और पूरा इनबाउंड मिल गया। तो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि यूजुअली कोई भी बिजनेस जब चालू होता है ना, उनका अप्रोच होता है बिजनेस बनाने का। अगेन आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव हैड सम फ्रेंड्स हु गाइडेड मी एट द राइट टाइम। मेरे एक दोस्त है जिसने मुझे है ना, जब यान बाजार का आइडिया में लेके उसके पास गया था और डिस्कस करा, तो उसने मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान दिया था, बहुत अच्छा, और मैं सबको देता हूँ, एंड आई फील दैट्स बहुत ज़्यादा पावर है उसमें। ही सेड प्रतीक, डोंट फोकस ऑन 100 कस्टमर्स, फोकस ऑन 10 फैंस। एब्सोल्युटली राइट। जिस दिन आपके 10 फैंस बनेंगे और आपकी एडवोकेसी चालू होगी और वर्ड ऑफ माउथ चालू होगा, एंड आई थिंक वो एक सिंगल एडवाइस ऐसा था जिसने मेरा पूरा बिजनेस जो है यान बाजार का शुरू का जो जर्नी है वो पूरा चेंज कर दिया। तो माय अप्रोच वाज ऑलवेज कि 10 फैन हो जाएंगे ना तो वर्ड ऑफ माउथ, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सच लार्ज इनबाउंड पाइपलाइन टुडे।
सब लोग पूरा रेफरल बिजनेस बनाया आपका, मतलब रेफरल बिजनेस हम लोग ने आज प्रोग्राम नहीं बनाया, मतलब रेफरल प्रोग्राम नहीं बनाया, हाँ। बट बिजनेस ऐसा बनाया कि हम अगर किसी साथ करेंगे ना तो कस्टमर डिलाइट हैज टू बी वेरी वेरी हाई. Okay. इफ द कस्टमर डिलाइट इज वेरी हाई, इट विल ट्रांसलेट टू कस्टमर एडवोकेसी, Nice. व्हिच विल ट्रांसलेट टू वर्ड ऑफ माउथ, व्हिच विल क्रिएट एन इनबाउंड पाइपलाइन फॉर योर बिजनेस. मेरा भी ऐसे ही मानना है, कुछ ये तो कर सकते हैं, बट और दूसरा मेरा ये भी मानना है कि अगर आप कोई एक कस्टमर को हैंडल कर रहे हो ना, अगर आप कस्टमर को शिद्दत से हैंडल कर दिया उस कस्टमर को, आपको कहीं जाना ही नहीं है. ही विल गिव यू दैट काइंड ऑफ मनी कि आपको दूसरे बिजनेस के बारे में सोचने, दूसरे क्लाइंट के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़े. चलो आप रैपिड फायर खेलते हैं. 5 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, नॉर्मल से क्वेश्चन. If you could choose any industries to start a business other than textile, what would be that? आई हैव ऑलवेज लव्ड फूड. हम जिधर से आते हैं झुंझुनू, जैसे आपको बोला था हम चटोरे बोलते हैं अपने आप को, तो इट हैज़ टू बी समथिंग इन द फूड इंडस्ट्री एंड इट हैज़ टू बी समथिंग इन द D2C स्पेस. बट आपने कभी सोचा था कैसे, ज्ञान बाजार के अलावा आपका 2-3 आइडिया है, कुछ है? तो मैं जो पहले बता रहा था, मैं वॉरिक जो एक बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रहा था, एक्चुअली फूड रिलेटेड बिजनेस ही था. तब डायरेक्ट टू कंज्यूमर का ऐसा कुछ टर्म मैंने सुना नहीं था, D2C करके कुछ होता नहीं था. ये बात 2012 की है. Right. I really worked hard on that idea. Again, due to financial issues, family business join किया, and thankfully that led to the Yan Bazaar journey. But if I had to do something else, I mean, I would not do anything else than Yan Bazaar. But if given a choice, I would do this. Who is your biggest inspiration or role model in the business world? Not Anupam Mittal, not Aman Gupta, apart from that. मैं आपको आंसर बोलूंगा तो आपको बहुत जेनरिक लगेगा, हाँ. बट अगर मैं आपको स्टोरी बोलूंगा तो आपको जेनरिक नहीं तो लगेगा. फिर आप सुना सकते हो बिल्कुल, एब्सोल्युटली. इलॉन मस्क. हाँ. तो अगेन 2012 की बात है, मैं वॉरिक में था एंड मेरा एक मॉड्यूल था इनोवेशन का, Okay. where we had to research and present a project dissertation, जिसको इंडिया में बोलते हैं, about 5,000 words on a disruptive business model. And disruptive in its true sense. तब मैंने रिसर्च करना चालू किया था एंड TEDx टॉक है एक इलॉन मस्क का 2012 का, Okay. जो मैंने देखा था. आई थिंक 2016 तक आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि दुनिया में मोस्टली लोग जानते नहीं थे, इलॉन मस्क का नाम लोगों ने सुना नहीं रहेगा. नवंबर 2012 में मैंने ये वीडियो देखा था एंड वो टाइम पे मेरे फ़ोन का वॉलपेपर इलॉन मस्क का फोटो था. मतलब वो आई गॉट सो इंस्पायर्ड बाय द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही वर टॉकिंग ना, बिकॉज एवरीथिंग इज डन हैज बीन ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग एंड डिसरप्टिव इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस. वो जो TEDx टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, उसने 3 बिजनेस की बात की थी, टेस्ला, SpaceX एंड सोलार सिटी. सोलार सिटी वो टाइम पे अलग बिजनेस था, Okay. which was started by someone else and then Tesla bought it over much later. तो अगर आप अगेन SpaceX देखते हो, राइट, स्पेस प्रोग्राम क्या है, इट्स ऑलवेज बीन गवर्नमेंट ओन बिकॉज लार्ज फंडिंग. अब इट्स लाइक कि सपोज आप अगर एक फ्लाइट ले रहे हो बैंगलोर से बॉम्बे की, एंड आप इमेजिन करो जो एयरक्राफ्ट है, जो सबसे बड़ा कॉस्ट फैक्टर है वो एयरक्राफ्ट का कॉस्ट. Right. वो एयरक्राफ्ट उसके बाद वापस कभी यूज ना हो पाए, Right. आपकी फ्लाइट टिकट कितनी महंगी हो जाएगी. आज जो 4,000 की टिकट है शायद 4 लाख उससे ज़्यादा ही महंगी रहेगी. तो स्पेस प्रोग्राम ऐसे ही होता है कि जब एक रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो पैसा बर्बाद हो गया. Right. उनका आइडिया बहुत क्लियर था कि बस ऐसा क्यों, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, फंडामेंटल थिंकिंग, ऐसा क्यों, Right. वाई कांट वी हैव अ रॉकेट लॉन्चर दैट कैन कम बैक एंड बी रीयूज्ड, राइट. एवरीवन लाफ्ड एट हिम, Right. राइट. लुक एट EVs. हिस्टोरिकली EVs हैव ऑलवेज बीन डॉर्की लुकिंग कार्स. हम लोग आज बैंगलोर में बैठे हैं, इंडिया में एक EV हुई करती थी बैंगलोर बेस्ड रीवा, जो बाद में महिंद्रा ने खरीदा था, राइट. रीवा का देख लो कैसा दिखता है. आप कोई भी हॉलीवुड मूवी उठा के देख लो, इफ देयर इज एन EV ना, द कैरेक्टर हुज ड्राइविंग इन EV इज ऑलवेज लाइक द डॉर्की कैरेक्टर, Right. राइट. टेस्ला ने पूरा का पूरा रेवोल्यूशनाइज किया कि बिकॉज उसका फर्स्ट लॉन्च था एक स्पोर्ट्स कार. हु कुड हैव इमेजिन कि एक EV स्पोर्ट्स कार हो सकती है. Right. I got so fascinated कि, and if you ask any of my friends from 2011 ना, till the time when Elon Musk shot to fame, everybody who would look at my phone, obviously wallpaper Elon Musk का था and screensaver भी Elon Musk था. And I still remember वो जो wallpaper था वो फोटो थी, he has a black round neck t-shirt and he's got his hands folded. And जो मेरा screensaver था, which is a photo of him wearing a grey jacket and पीछे एक टेस्ला गाड़ी खड़ी है. मतलब मुझे दोनों फोटो भी याद है. And everybody would ask me यार ये कौन है. मैं सबको सुनाऊंगा कि यार ये Elon Musk है, ये बिजनेस चला रहा है. मैं सबको बोलता था कि देखने एक टाइम आएगा when I'll be the richest person in the world. आप बोलते थे ऐसा? And nobody would believe me. Okay. And today if you ask any of those friends ना, मतलब आज उनको लगता है कि यार ये वो टाइम पे जो पागल बोलता था Elon Musk, मैंने नाम भी नहीं सुना है ना. Today actually there has been times when he's been the richest in the world. That is a true story. Yeah. I got truly inspired by him. And I think the way he builds business is not the way I build my business. उनका approach काफ़ी अलग है. But where I really admire him is his first principles thinking. Right. I think आज भी अगर आपने देखे तो only one of his business is listed. Can you imagine the day his other businesses like SpaceX, Right. Boring, there's one more company now, Neuralink, Yeah, Neuralink. right? Absolutely. Can you imagine अगर इनमें से और 1-2 कंपनीज लिस्ट हो जाती है,
what will happen to his wealth. Right. $1,000 billion तो I think it will reach. I mean, I don't know a number. एक टाइम था 4 साल पहले जब कोई ये भी नहीं मान सकता था कि कोई 200 बिलियन किसी का हो सकता है. भी नहीं पहुंच सकते थे, million भी पहुंच सकते. Today we've seen 200 बिलियन भी क्रॉस हुए लोग. Right. Tell us one thing about yourself that you would like to change. A lot of things. One thing जो कि सबसे खराब हो, बताना चाहते हो तो. Very tough because बहुत सारी चीज़ें हैं. Last year तक I was struggling with, मेरा काफ़ी ऐसा था कि I would always be a perfectionist and I realized startup building is not, you can't be a perfectionist. मतलब you have to just be very scrappy. So I think, thankfully and thanks to a lot of people who've guided me, I don't know if this is the right timing, but I would probably want to have some balance with my personal life also. Today my entire life is about Dayan Bazaar. Are you early bird or night owl, sir? I like to get up early. Okay. So early bird. Nice. मैंने एक लाइन बोल दी थी, जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. एक रील मेरी वायरल हो गई थी बहुत खतरनाक वाली, और सब लोगों ने ऐसा कमेंट मारा कि तू हम तो $250 कमा रहे हैं, हम सक्सेसफुल है. $250 कमा रहे हैं. कितना सक्सेसफुल होगा. बोला मेरे पापा सुबह 2 बजे उठते हैं और अब ऐसी की लाइफ जीते. मैंने कहा क्या सक्सेसफुल है तुम लोग. बट वो रील बहुत वायरल हुई थी बैड लैंग्वेज में, मतलब लोग बहुत कमेंट किया अच्छा सुबह जल्दी उठना जरूरी है. मैंने कहा यस जल्दी उठना जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपकी शुरुआत पूरी सॉलिड तरीके से होती है. आप सूरज को देखते हो, चीज़ें ऑब्जर्व करते हो. कोई नहीं उठ रहा है, आप पूरे अपार्टमेंट में सबसे पहले उठ रहे हो, देख रहे हो नोबडी हैज वेक अप राइट नाउ. कोई नहीं दिखता है, वॉक करते हो, आपको अच्छा फील आता है. So there are many books written on this topic. We've seen global leaders, global businessmen, like some big personalities जो early wake up करते हैं. Indian मतलब अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति में, सभ्यता में भी ये सब चीज़ लिखा हुआ है. जल्दी उठने का, सूर्यास्त के पहले उठने का. 4 बजे उठना है. In addition to all of that, I have a theory of my own. अब मुझे लगता है 2 तरह के लोग होते हैं. एक वो है जिनको पार्टी करना बहुत पसंद है, मतलब वो करके वो क्या कर रहे हैं, उन लोग मेमोरीज बना रहे हैं. दूसरे उस तरह के लोग होते हैं जिनको फ्यूचर बनाना है, और जिनको फ्यूचर बनाना है ना, दैट दे डज नॉट स्टार्ट एट 6 AM और 7 AM. जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं उनका दिन कब शुरुआत होता है, जब वो उठते हैं. वो 9 बजे उठे या 10 बजे उठे या 11 बजे उठे, उनका दिन तब शुरू होता है. आई थिंक जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जिनको फ्यूचर बनाना है ना, उनका दिन चालू होता है 12 बजे 12 AM. सो एवरी एक्स्ट्रा आवर यू स्लीप ना, यू फील यार मैंने मेरे दिन का 1 घंटा बर्बाद किया है. तभी तो 99% और 1% की कैटेगरी अलग है. मैं बोल रहा हूँ कि मैं मेरी लाइफ को सक्सेसफुल बना रहा हूँ, जल्दी उठ रहा हूँ. 98% लोग नहीं कर रहे हैं. वो 9 बजे 10 बजे उठ के ऑफिस आएंगे, 11 बजे ऑफिस आएंगे, उनको पता ही नहीं चला उनकी लाइफ में क्या है. कॉन्शियसनेस नहीं उन लोगों को कि क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं. चलने का पता नहीं है, उठने का पता नहीं है, बात करने का पता नहीं. तो आप बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू क्विट द सिगरेट स्मोकिंग, में छोड़ना चाहता हूँ. आप संकल्प ले लो, बना ही तोड़ने के लिए, आपने लिया ही तोड़ने के लिए, आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन तोड़ने के लिए ही लिया है भाई साहब. अगर आपने इसको पा लिया तो दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट. आप अलग जोन में चले जाओगे. आप बोलोगे यार मेरे को ये बिजनेस में ये करना ही करना है, तो संकल्प टूटने के लिए ही है सर, कि वो होगा नहीं होगा, पर आपने उसको कर दिया. जैसे SpaceX की बात करें अपन, बिकॉज ही हैड अ माइंड सेट वेरी वेल सेट कि यार मेरे को वो करना ही करना. वो छोड़ देता अगर 3 अटेम्प्ट के बाद में, हाँ, तो शायद नहीं हो पाता. दैट वाज फ्रॉम माय साइड. एंड बट थैंक यू सर, ग्रेट स्टोरी. होप आपने को बड़ा अच्छा लगा. हाँ, मुझे मतलब एक चीज़ तो मैं जो आपको बोला पर्सनल लाइफ में, दैट्स माय बिगेस्ट टेक अवे. और जो आपकी लास्ट की स्टोरी थी ना, आई थिंक वो संकल्प तोड़ने वाला जो एक वो है डायलॉग, वो तो मैं चुरा लिया हूँ आज. थैंक्स सर.